Hello friend, welcome once again. Now we are starting a new lecture series, that is Leadership and Personality Development, which is based on the concept of self-management leadership, and this entire course will be made available on the courses.ganeshbabu.in. Now who all can attend? Anyone who has just finished with his 11th standard and has gone into 12th standard, you can join it. Children below that, you will have to wait for a couple of more days. I'll make a series for children also, and from onwards anybody can join this course. In case you wish to know more details, you can call at 9090099035, or if you wish to WhatsApp 8275577650. These are the two numbers. WhatsApp will be made available on the first number also in some time, and that will be announced. Now today, one topic that we are going to talk is on self-esteem. We'll talk about self-esteem today and boost your self-esteem. So what is self-esteem? Let's start with this. To understand that, let us take an example. For example, this 500 rupees note is there. Now this note has an intrinsic value, 500 rupees. And this is an objective value, whether this note comes to me or it remains with you or it goes to even a beggar. This value of this note does not change. अगर ये किसी टायर के नीचे आ जाए, इसमें मिट्टी लग जाए, गीला हो जाए, इसका एक कोने में आग लग जाए, the intrinsic value of this note does not change. And it is an objective value. Whether it is with me or with you, the value does not change. However, self-esteem is also a value, but that is not a objective value. It is a subjective value about ourselves. So for the sake of understanding, self-esteem is a person's overall subjective evaluation of their own worth or value. Matlab, for example, if I'm Ganesh Babu, how much worth or value do I attach to myself? That will be the defining factor which will determine the self-esteem. So it is a subjective evaluation of one's own self. So people with high self-esteem definitely have an advantage because their ability to engage with life will be at a different level as compared to people with low self-esteem. So it is a belief. So for example, me, I believe that I am like this. ये मेरा विश्वास है. So it is a belief that how much you appreciate and like yourself regardless of the circumstances or the failures. If I have to give you an example, for example, Arunima Sinha, this girl was pushed from a running train and she lost her leg. But this girl, and वो रात भर पटरी के बीच में पड़ी रही, but in spite of that, with her one leg amputated and नकली टांग के साथ, she not only climbed Mount Everest, she climbed so many other peaks around the world because her self-esteem, her respect for herself was very high. But many people are not able to do that. They are not able to love themselves. They are not able to respect themselves. They are not able to appreciate themselves. I must respect myself before I expect others to respect me. मुझे अगर मैं खुद को ही प्यार नहीं कर पाता, मैं अगर खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो there is no point asking for respect from others. So it is a belief that how much you appreciate yourself in spite of आपके हालात, in spite of आपके failures. सांस चल रही है, you can bounce back, irrespective of what is the nature of failures. So if you feel that I'm not worthy of love, nobody likes me, मैं तो फालतू का हूँ, दुनिया में बोझ हूँ, अगर इस तरह के सोच है, definitely you are not able to value yourself. Let's see more of it. There are certain factors that define self confidence. जब आपको देखते हैं या आप मुझे देखते हो, तो वो factors में, for example, आपका आत्मविश्वास. So you cannot have high self confidence with low self esteem. They are actually complement each other. है ना, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. तो आपका आत्मविश्वास आपके सेल्फ एस्टीम के साथ कनेक्टेड है, और आपका सेल्फ एस्टीम
जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट, मतलब ये एक दूसरे को फीड करता है। तो ये क्या कैसे करता है हम इसको देखेंगे। व्हेन यू आर विथ हाई सेल्फ एस्टीम यू आर सिक्योर्ड। रिलेशनशिप में आपको डर नहीं लगता कि मुझे छोड़ के चला जाएगा। यू फील कंफर्टेबल, यू अलाउ द अदर पर्सन द फ्रीडम दैट ही और शी डिजर्व्स, बिकॉज यू नो कि दिस मैन और दिस वुमेन इज प्लेइंग मल्टीपल रोल। ये बेटा भी है, ये बेटी भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड भी है, मेरे साथ हस्बैंड भी है, मेरे साथ वाइफ भी है, मल्टीपल रोल्स। यू विल नॉट होल्ड ऑन टू वन रोल कि भैया तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे ही दोस्त रहो, दूसरों से बात नहीं करोगे, बिकॉज यू डोंट फील insecure from inside. You feel comfortable and you allow others also to be comfortable around you. Feeling of security. You know everything is secured and things will fall back in place. है ना? Lack of insecurity creates a lot of anxiety. Self identity. ये आपके self के identity को establish करता है. Whether you know, whether you respect yourself, whether you don't respect yourself, it has got a strong connect with self-esteem. What is your self-identity? A man with integrity will never do उल्टा पुल्टा because he values his identity. है ना? जब आपके values deviate हो जाते हो तो थोड़ा सा फायदे के लिए, थोड़ा सा गेन के लिए आप कुछ भी कर जाते हो, because you don't value yourself then. है ना? देखेंगे sense of belonging, है ना? There is a comfort in all relationship. You can manage your relationship much more better because your self-esteem is very high. But when your self-esteem is low, you feel insecure. You want others to respect you. You want others to love you because there's a deficiency within you. When I love myself, I'm in a position to give love to others. But when I don't love myself, I'm deficient of it and I become a bhikari. है ना? मुझे तुम रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, मुझे तुम प्यार क्यों नहीं कर रहे। सो यू हैव टू लर्न टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, लर्न टू लव योर सेल्फ, लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ इन स्पाइट ऑफ ऑल योर फ्लॉज कैन बी करेक्टेड, बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, है ना? नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस। यू फील दैट यू आर कॉम्पिटेंट। यू फील कि अभी मुझ में डेफिशिएंसी है लेकिन मैं इस डेफिशिएंसी को भर सकता हूँ, भर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं इस गैप को भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। दैट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, दिस कॉम्पिटेंस इज नॉट विथ अदर्स, इट इज विथ माई ओन सेल्फ। गणेश बाबू का कॉम्पिटिशन इज विथ गणेश बाबू। आई डोंट नीड टू कम्पीट विथ अदर्स, बिकॉज अदर्स के साथ कॉम्पीट करूंगा देयर विल बी समबडी हु इज बेटर देन मी. So I don't need to compete with others. I need to compete with myself, and I am confident that I can do that. ऐसा आत्मविश्वास, है ना? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, फर्स्ट यू टू बी सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड का मतलब इनएक्शन नहीं है. सेटिस्फाइड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कप जिसमें चाय पीता हूँ, वो कप से आई शुड बी सेटिस्फाइड, देन आई कैन लुक फॉर अ बेटर कप. बट अगर मैं यहाँ प्रेजेंट में सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई एम अनस्टेबल, देन आई कैन नॉट एस्पायर टू गो अप. सो फर्स्ट वेर एवर यू आर, बी सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव डन. मिस्टेक्स हुआ है उसको हम सीखेंगे, एंड देन एस्पायर टू ग्रो एंड मूव फर्दर. दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, है ना? सेल्फ एस्टीम के कुछ इक्वलेंट टर्म्स है, इंटरचेंजेबली हम बात कर जाते हैं, बट देर आर स्लाइट डिफरेंस, उसमें हम जाएंगे नहीं. लेट मी शो यू दोज टर्म्स ऑल्सो. सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट. दिस अ कपल ऑफ वर्ड्स जो बहुत ही हम लूजली इंटरचेंज करके बोल जाते हैं. उनके छोटे छोटे डिफरेंस भी होते होंगे, बट विल नॉट टॉक अबाउट दैट. बट ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड, आर कनेक्टेड, एंड दे ऑल मैनिफेस्ट इन द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, इन योर प्रोफेशनल सेटिंग, पर्सनल सेटिंग, इन योर ऑल रिलेशनशिप. लेट्स मूव फर्दर. Now, self-esteem जो है, depending upon whether you are a person with high self-esteem or low self-esteem, अगर आपको ये accurately पता चल जाए, this will help you to predict the influence of this self-esteem in your future activities and its outcome. मतलब आप समझ रहे हो, आज जो आप एक्शन ले रहे हो, whether those actions will produce those desired effect or not will also determine by the present state of your self-esteem.
A person with high self-esteem will have intensity in his action, whereas a person with low self-esteem वो fear of failure से डरता रहेगा, वो comfort zone में उलझता रहेगा, उसको procrastination करेगा. लेकिन the person who is a go-getter, he will push, but उसके लिए आपका self-esteem becomes one of the defining factors. So this will influence your academic achievement. So people with high self-esteem attach more intensity to whatever act they do, whether it's padhai or whether it's sports, because they are people with high self-esteem. Failures उनको रोक नहीं पाता है ना. Professional achievement, these people achieve professionally also very good because they're competent. वो अपने आप को वैल्यू करते हैं, वो अपने आप को पुश करते हैं. वो अगर वो एक गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने में, expected value and present level में, they have the capability to fill provided somebody tells them कि करना क्या है ना. Next is quality of the social circle. You will find people with high self-esteem attach with people with high self-esteem. Low self-esteem वालों को high self-esteem से दोस्ती करने में भी मुश्किल आ जाएगा because they feel they can see the gap. वो मास्क लगा के चुपते रहेंगे. मतलब it is very difficult for a person with low self-esteem to engage with a high self-esteem person because वो inferiority complex में आना शुरू हो जाएगा. So this has to be corrected. This can be fixed. Happiness in life. आप अपने जीवन में कितने प्रसन्न हो, कितने खुश हो, it is not dependent on what is your professional achievement or what are your financial gains that you've made. It is based on what is your internal state of mind. So that also self-esteem. So you may be financially very rich yet not happy, and you can be financially not so rich but very content and very happy. In fact, first category को second category से jealousy हो सकता है, किसके पास कुछ भी नहीं फिर भी बड़ा खुश है. So happiness. Next is satisfaction in marriage. जो लोग marital relationship में हैं, if your self-esteem is in balance, then you know how to respect the other person, you know how to set boundaries, आप दूसरों को सुन पाओगे, आपको controlling behavior नहीं होगा. But when your own self-esteem is low, it will be very difficult to engage in a healthy marital relationship because वहाँ पे controlling tendencies आएगा, fault finding आ जाएगा, छोटी छोटी बातों को magnify करना, arrogance, shouting, ये सब आ जाएगा because somewhere you are feeling insecure because you are not in love with yourself. There's a deficiency in love and trust in yourself. So you attach so much of value to the other person that you want to control him, that he should not get let go. और आपको डर लगा रहता है कि ये कहीं छोड़ ना दे आपको. So that's all controlling behavior because of poor or low self-esteem. This affects the marital relationship significantly sometimes beyond repair because it damages the values and the beauty of life itself. So we'll talk about it sometime later. Quality of relationship, you've already understood, whether it's professional relationship, personal relationship, social relationship, cultural relationship, everywhere. A person with high self-esteem can conduct himself much, much better as compared to a person with low self-esteem. He will always have that social anxiety. लोग क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा. But people with high self-esteem, they are sensitive to others' thing, but they don't get unduly bogged by them. है ना, बोलते ना वो क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे रोग. They don't get affected. But people with low self-esteem, they will severely get affected by log kya kahenge. Even criminal behavior can get initiated if you're suffering from extreme low self-esteem because आपको लगेगा समाज आपके अगेंस्ट में, लोग आपके अगेंस्ट में, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट में, और ये टेंडेंसी इतना ज़्यादा चला जाएगा कि आपके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज भी आ जाएगा because you're not able to appreciate yourself and the people around you. So यहाँ पे around you से ज़्यादा अपने ऊपर है ये. Now what is the importance of self-esteem and why it needs to be developed? It needs to be developed because it affects our decision making process. ये हमारे जीवन में जिस तरह से हम निर्णय लेते हैं हर परिस्थिति में, between the stimulus and the response we have the freedom of choice. This freedom of choice gets affected if you're suffering from low self-esteem. People with high self-esteem can take better and calculated risk ले सकते हैं, but people with low self-esteem are always इनको अपने decision पे कभी विश्वास नहीं होगा. They will look for approval seeking. They will look for somebody to say हाँ तुम सही कर रहे हो. They cannot take decision and stand by it. वो shaky wicket पे रहेंगे. So ये मतलब आप देख पाओगे, आपको जब interaction होता है, you can see some people are very indecisive. They are not sure about themselves because अंदर से वो something is pulling them down,
है ना, डिसीजन मेकिंग को बुरी तरह से, योर पर्सनल रिलेशनशिप विल सीवियरली गेट अफेक्टेड इफ यू डोंट बिल्ट अप योर सेल्फ एस्टीम, है ना। आप एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाओगे, आप रिएक्टिव हो जाओगे, आप कंट्रोलिंग हो जाओगे, आप आर्गुमेंटेटिव हो जाओगे, आप फॉल्ट फाइंडिंग हो जाओगे, हाइपरक्रिटिकल टेंडेंसीज में चले जाओगे, बिकॉज योर ओन सेल्फ एस्टीम इज लो, सो यू आर नॉट एबल टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, सो यू वॉन्ट टू put others down so that you feel superior. That's a very dangerous tendency. Instead of you boosting yourself, you put others down. That's very damaging in relationship. And अगर इसको हमने fix नहीं किया, it can lead to very serious consequences in all forms of relationship. Your social relationship will seriously get affected. You will get into social anxiety. आपको लोगों से बोलना नहीं पता होगा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा उस किसी बंदे से कैसे कम्युनिकेशन शुरू करना, कैसे उसको सस्टेन करना है, दैट सोशल कम्युनिकेशन। आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे किसी गैदरिंग में, स्मॉल गैदरिंग में आपको मन करेगा किसी कोने में घुस जाओ, या मन करेगा कि वो बंदा मेरी तरफ से यहाँ से कट लो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू एंगेज, and this will severely affect your leadership skills. It will seriously affect your ability to influence others. आपके हाथ पैर में confidence नहीं दिखेगा. You will feel fumbling in a public forum. So this has to be fixed. This can be fixed, by the way. Next is quality of your professional life. You know, profession में भी आपको लोग वैल्यू नहीं कर पाएंगे because you are not able to value yourself. आप बेचारे बन के रहोगे, you know. अरे शर्मा जी दुखी आत्मा है, दुखी आत्मा बनोगे तो लोग आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, भले ही सुपरफिशियली वो आपको शर्मा जी नमस्ते बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे शर्मा जी में दम नहीं है, बकल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम है, आत्मविश्वास नहीं आ रहा, कहीं पे अपना ओपिनियन नहीं दे पाओगे। प्रोफेशनल कंडीशन में इफ़ यू हैव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, बजाय कि आप चुप रह पाओगे। इट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव लेने में आपका, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम है तो घबराहट होती है कि मैं अगर इनिशिएटिव ले लिया लोग हंसेंगे, टीचर क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, बिकॉज आई फील दैट इट इज़ बेटर टू स्टे इन माई कंफर्ट जोन, सो इट विल प्रोहिबिट यू फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव एंड ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन, है ना। योर इमोशनल हेल्थ विल कीप डिप्रिशिएटिंग, बिकॉज आपको पता है कि आप मुंह से साइलेंट हो, बंदा अंदर आप नॉइजी हो, यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, एंड दैट नॉइज क्रिएट्स लॉट ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस, है ना। रिलेशनशिप में खोखलापन आना शुरू हो जाएगा, एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो this has to be corrected. And last is your overall well-being. लाइफ के हर डायमेंशन पे लो सेल्फ एस्टीम जो है वो बुरी तरह से असर करता है। कोरोना हैज़ एक्चुअली मैग्नीफाइड दिस प्रॉब्लम, है ना। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, AFOSOP का है, उस वीडियो का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। वहाँ पे मैंने सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि, है ना, देन आई हैव स्पोकन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हाइपरक्रिटिकल थिंकिंग, डिप्रेशन ऑब्लिक एग्रेशन, इसके बारे में मैंने बात किया था, तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। उस वीडियो का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, है ना। तो यू विल नो, थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि हाउ डज इट अफेक्ट एंड हाउ इट नीड्स टू बी करेक्टेड। क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग, बिकॉज लो सेल्फ एस्टीम है तो आपका जो सोच का ओरिजिन है वो लो सेल्फ एस्टीम से होगा, तो नेचुरली वो अंदर एक नॉइज़ घूमता रहता है कि यार तो मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, नोबडी रेस्पेक्ट्स मी, है ना, सेल्फ वर्थ नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है। और इस सोच से जब आप सोचोगे तो ये गंगोत्री को ही पॉल्यूट कर देगा, और उससे निकलने वाली गंगा फिर बिहेवियर में आना शुरू हो जाएगा, एंड पीपल कैन ऑब्जर्व इट। एक्चुअली आपका बिहेवियर, आप बोलो या ना बोलो, ये आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट करेगा और पीपल कैन ऑब्जर्व इट। नाउ देयर आर सर्टेन डेफिनेट एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हाई सेल्फ एस्टीम। जैसे ये लड़की यहाँ पे दिख रही है, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एस्टीम हाई होने का फ़ायदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई वीकनेस नहीं, वीकनेस भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, बट व्हेन योर सेल्फ एस्टीम इज़ हाई, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, you know, carry out an analysis about yourself and recognize your strengths and weakness, and accept your strengths and also accept your weakness. So when you have high self-esteem, it gives you a clear and firm understanding of your skills, talents and special qualities that makes you special, है ना। अदरवाइज हमको पता नहीं चलता मेरे स्ट्रेंथ क्या, मेरे वीकनेस क्या, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सेल्फ नेग्लेक्ट,
आई डोंट अप्रिशिएट माई सेल्फ, तो मैं कहाँ से मेरे को अपने स्किल और वो दिखेगा, हमेशा एक हीन भावना से ग्रसित रहूँगा. सो दिस इज फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड इज यू कैन मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स. क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गरीब है अमीर है, ये चौकीदार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू कैन ट्रीट ऑल पीपल इन ऑल रिलेशनशिप इन ए फेयर एंड स्क्वायर मैनर, है ना. आपको रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत आ जाएगा. वरना क्लास के टॉपर से आपके नहीं बनेगी क्योंकि आपको जेलसी हो रहा है, जो लोग आपके नीचे उससे भी नहीं बनेगी क्योंकि आपको लगता है सुपीरियर हो. एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ऑपोजिट जेंडर से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. व्हेन यू हैव हाई सेल्फ एस्टीम, इट डज नॉट मैटर लड़का है लड़की है, अंकल है आंटी है, पापा है मम्मी है. यू कैन मेंटेन बैलेंस इन ऑल रिलेशनशिप व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, है ना. Have realistic and appropriate expectation of themselves and their ability. Because you are high self-esteem person, you know your skills, you know your weaknesses, you know your strengths. Therefore, because आपको अपने बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, so आपको अपने से अपेक्षा बड़ा बैलेंस होगा. You will not ओवर एक्सपेक्ट करो अपने आप से, ना अपने आप को अंडर वैल्यू करो. बिकॉज यू नो वॉट इज योर वर्थ, एंड बिकॉज यू नो दिस इज माई वर्थ, यू हैव द एबिलिटी टू पुश योर सेल्फ एंड मेक रियलिस्टिक गोल सेटिंग एंड अचीव देम. सो दैट बैलेंस. लो सेल्फ एस्टीम होने से आपको पता नहीं चलता आपके अंदर क्या क्वालिटी है, और आपके गोल या तो बहुत नीचे चला जाओगे या बहुत बड़े बड़े सेट कर दोगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाओगे. फिर क्या फ़ायदा ऐसे गोल सेट करने का. बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, आप सट्टा खेल रहे हो. सट्टा मतलब समझ रहे हो, जुआ खेल के, जुआ मतलब नॉट दैट जुआ इन दैट सेंस, मतलब आप एक लक ट्राई कर रहे हो गया तो ठीक है, नहीं तो नो, दैट्स नॉट द वे. सो people with high self-esteem, they have a clearer understanding of themselves, and they have a realistic and appropriate expectation from themselves and also from others. बहुत important है. Others also, people with low self-esteem, they place so much of high expectation on others, वो दूसरे की कमर ही तोड़ देंगे. खुद they are suffering from low self-esteem, खुद they are suffering from insecurity, खुद they are suffering from disrespect to themselves, but they want respect from others. They have extremely high expectation. They can actually burn the other person because of this emotional uncontrolled expression of demands and all those things, because they will ask you to meet their expectation to prove that you love them, which can be extremely stressful in relationships, especially in close relationships. So people with high self-esteem will have very, very realistic and appropriate expectation from the self, because they understand themselves, and from others. So that's very important. It's a give and take relationship. You give me respect, I will give you respect. You cannot treat me in a particular manner and expect me to respect you. That will not be possible, because that's an unfair equation. So can you treat others the way you want to be treated? That principle you can only apply when a person with high self-esteem. Otherwise, everything will make you insecure. Next is understand their needs and are able to express them fairly and accurately. People with high self-esteem, they understand their thinking pattern. They are able to discriminate between what is right and what is wrong. And when they place their expectation, when they place their needs and demands, they're very clear in their communication. They will not leave vagueness in their communication. Vagueness matlab clear nahi hai. बस मतलब it is like other person has to imagine कि उन्हें क्या चाहिए. दैट्स नॉट पॉसिबल. कम्युनिकेशन में क्लैरिटी तभी आएगा व्हेन यू आर इंटरनली क्लियर. बट व्हेन यू आर नॉट इंटरनली क्लियर बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, यू विल मेक लूज स्टेटमेंट and expect that others have to understand your mind and respond. You will spoil your relationship, you will spoil your opportunities, you will spoil your chances, and that's a very damaging thing to happen once you're suffering from low self-esteem. So this needs to be corrected, and best thing is this can be corrected. That's the best thing. Willingness to put the right amount of efforts to achieve their goal. People with high self-esteem, they set goals. They not only set goals, they also have a clear-cut action plan to achieve it. And in the action plan, if there are certain bottlenecks, challenges, obstacles, they accept them and they have a strategy to clear them. Smart goals, specific, measurable, realistic, actionable, and time bound. So willingness to put the right efforts.
पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम वो घबरा जाते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा मेहनत करना है, ये तो मुझसे नहीं होगा. दे लुक फॉर शॉर्टकट, दे लुक फॉर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से वो अपने लक्ष्य को बिना मेहनत किए अपने वीकनेस को रखते हुए कर दे. दैट्स वेरी डैमेजिंग, है ना. नेक्स्ट इज पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम की एक और खासियत होता है कि they also meet failure, they also have setback in life, but they bounce back very quickly. They also feel bad, after all they are human being, but their the period in which they live that down phase में that's very short. जो फेलियर्स के बाद वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो उस मूड पे रहते हैं कि दुखी होके. दे बाउंस बैक वेरी वेरी फास्ट. इनफैक्ट सम पीपल दे बाउंस बैक सो इंस्टेंटली कि दे बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स कि हाउ कैन अ पर्सन बाउंस बैक सो फास्ट. अरुणिमा सिन्हा, and I'm just giving her example because look at, एक पाँव नहीं और एवरेस्ट चढ़ना बोल रही, कब? उसी दिन बिफोर इवन शी वॉज टेकन टू दी हॉस्पिटल उसने अपने मन में बना लिया. अगर एक फौजी एग्जाम्पल चाहिए, फौज में ये बहुत मिलेगा बिकॉज फौजीज आर बाई नेचर लाइक दैट. उनका तो सिलेक्शन भी ऐसा होता है. विंग कमांडर अभिनंदन, ही वॉज his plane fell in POK, he was caught, made a prisoner, then he was released, and after some time, after all this medical thing and rehabilitation, he started flying. It needs courage to fly again after you were a PW in POK. It needs real courage and strength of character to do that. It is not possible for people with loss. I'm sure he would have been tortured. भले ही वो फिजिकल टॉर्चर शुरू में जो हुआ तो उसके बाद कम हुआ होगा बिकॉज द वीडियो गॉट लीक, बट ही वुड हैव बीन मेंटली टॉर्चर्ड. He would have been mentally tortured. And उसके बावजूद that willingness to fly after whatever period, 6 months or whatever, that was tremendous demonstration of that confidence and self-worth, self-respect. नहीं तो he could have gone कि मैं सर अब नहीं फ्लाइंग करूँगा, ग्राउंड ड्यूटी करूँगा. No, he said I'll fly. Tremendous. क्रैश के बाद, प्लेन क्रैश के बाद, people again getting into the cockpit, whether it's a civilian or a military situation में. So many cases, we'll not talk about that here. So accept failures. So people with high self-esteem, they accept failures. उन्हें अगर अपना गलती दिखता है, they don't make noise about it. They'll say, yes, ये मेरा गलती है. And they don't blame others. In fact, they learn from their mistakes. So they take responsibility for their decisions and action. They don't decide something, act something, and then regret. They think before they act because they know that every decision that you take will come with a consequence. You cannot take a decision and when the consequence comes, then you say, sorry, I'm not responsible for this consequence. That's not the indicator of people with high self-esteem. Because people with high self-esteem don't react, they respond. And response में क्या होता है? The decisions before it is conveyed or executed on the outside world, they evaluate कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या आएगा. And they have the power and the capacity to accept the outcome. थूक के नहीं चाटते. That's very important. थूक के नहीं चाटते because they are people with high self-esteem. If they have taken a wrong decision, they also have the moral courage to accept it. बाद में थूक के चाटने वाला काम जो होता है वो बड़ा गंदा हो जाता है. उसमें आपका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नीचे चला जाएगा, सेल्फ वर्थ चला जाएगा. एंड पीपल विल मॉक यू बिहाइंड कि अरे ये तो कुछ भी करता है. नो, बी केयरफुल. सो पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम, दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजंस एंड एक्शंस, है ना. दे कैन मोटिवेट देमसेल्फ बिकॉज दे आर इंटरनली मोटिवेटिंग देमसेल्फ बिकॉज दे हैव हाई सेल्फ एस्टीम. वो फेलियर के बाद नीचे नहीं लेटते, दे बाउंस बैक and they can motivate themselves and others when they meet failures and obstacles. They are real leaders of life. क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता है, ना सिर्फ वो अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं. That's the capability of people with high self-esteem. Any organization would love to have people with high self-esteem. People with low self-esteem will turn out to be burden to themselves and to the society at large. है ना. People with high self-esteem, they are always inspired to take new challenges. घबराते नहीं है. एक फेलियर, एक दरवाजा बंद हुआ दूसरा खोल देंगे, दूसरा बंद हुआ तीसरा, सब बंद होगा तो छत तोड़ देंगे. दे आर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग फोर्स. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैमिली में, इफ देयर आर पीपल विथ हाई सेल्फ एस्टीम, देयर वैल्यू, देयर अदर्स विल बी बिहाइंड देम बिकॉज दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. उन्हें किसी भी कंडीशन में डाल दो, वो प्रॉब्लम को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, देन फाइट बैक. They are, they have strong ability to bounce back from failures. So
what are the indicators of high self-esteem? And I'll give you a couple of indicators. You check yourself. This has to be built. This can be built. So indicators of high self-esteem, है ना? They avoid dwelling on the past negative experience. आप पास में उलझते नहीं हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, पर हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं जाओगे, बिकॉज यू ओनली अप्लाई द नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग. मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे मेरी सोच क्या थी, और उस सोच के पीछे मेरा वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड क्या था, मेरे पास क्या विकल्प थे, कैन आई डू इट नाउ, am I doing it now, can I increase the intensity so that I can achieve the whatever desired goal. That is the process by which people with high self-esteem think. People with low self-esteem, they wait for others to change, कि मेरा दोस्त चेंज होगा, मेरा बॉस चेंज होगा. Nobody will change, you have to change yourself. So that's a major indicator of people with high self-esteem. Past में अटकेंगे नहीं, learn करेंगे. Sometime you may have to take harsh decisions. They can take that because they are people with high self-esteem and they don't get entangled in the past, है ना. नेक्स्ट इज सेल्फ बिलीव. वो अपने ऊपर बहुत विश्वास करते हैं. क्षमता ना भी हो तो क्षमता को बिल्ड करने की काबिलियत रखते हैं. दे आर capable of identifying the deficient area and they believe that they can do it. They don't compare themselves with others. They compare with their previous self. अपने previous self से compare करते हैं and present को better करने का attempt करते हैं. That's the capability of people with high self-esteem. Next is, since they are internally clear, they have the ability to express their needs very clearly on the outside. So when there is internal clarity, they can express it very, very well with external clarity. So internal clarity leads to external. People with low self-esteem, they have to wear a mask. Why? Because they know there is something fundamentally wrong inside, but they have to project something outside. So उनको मुखौटा पहनना पड़ता है. So उनका communication distort हो जाता है. So people with high self-esteem have the ability to express themselves accurately because they understand themselves accurately. I'm not talking about the language part. I'm talking about the message part. Language is a different skill. Next is they feel confident within. ना सिर्फ वो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाई देते, वो अंदर से भी कॉन्फिडेंट होते हैं. इन द सेंस कि उनके सामने कोई चैलेंज आ जाए, सो दे अंडरस्टैंड अ चैलेंजिंग टास्क, बट इनसाइड दे हैव ए कम्युनिकेशन बिटवीन देमसेल्फ व्हिच सेज डोंट वरी, हो जाएगा, कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है बट वी कैन डू इट. दैट एबिलिटी कम्स ओनली व्हेन यू आर विथ high self-esteem. People with low self-esteem only see failures. हे भगवान ये करने से फेल हो जाएगा, हे भगवान वो करने से फेल हो जाएगा. बट दीज पीपल दे वेरी कॉन्फिडेंट कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. अभी मेरे पास मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मेरा पब्लिक स्पीकिंग वीक है, मेरा इंटरपर्सनल स्किल वीक है, बट मेरे पास 3 महीने, आई कैन डू इट. एंड दे आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल. दे डोंट मेक नॉइज, दे डू एक्शन. So that's the indicator of people with high self-esteem. They have a positive outlook to life. मतलब मुसीबत में भी वो बाउंस बैक करके लाइफ में रास्ता ढूंढने में करते हैं. They can segregate between what is in their control and what is not in their control. And they have the ability to switch from what is not in their control to what is in a control. Because that's where the growth happens. What is not in their control, they have the capability to accept it. They have the capability to accept it. तो उन्हें ये पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल कमज़ोर है, नाउ आई हैव टू डिसाइड कि क्या ये मेरी क्षमता के अंदर है या क्षमता के बाहर है. पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम विल कीप ड्वेलिंग ओवर इट. अरे मेरा कम्युनिकेशन वीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा. लेकिन पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम वो क्या बोलेंगे, मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, लेकिन 14 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर मैं इसको एक ऐसे लेवल पे लेके आ जाऊंगा. एंड दे पुश देमसेल्फ beyond the comfort zone. People with low self-esteem cannot do it. वो प्रॉब्लम की चिंता करते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मेरा स्ट्रेस हैंडलिंग वीक है. That's a difference between high self-esteem and low self-esteem. They can say no when required. वो पीयर प्रेशर में नहीं आते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत हो तो नो बोल सकते हैं. बिकॉज इट डज नॉट मैटर मेरे नो बोलने से तुम क्या सोचोगे.
they have the power to say no when required. But people with low self-esteem cannot do it because they are people pleasers. उन्हें दूसरों को खुश करना है, और दूसरों को खुश करना है तो उनकी बात मानना है, तो they cannot say no. वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं छोड़ो, पढ़ाई तो होता रहेगा, चलो मस्ती करते हैं, जो भी करना है. So that's the indicator of high self-esteem. They can say no. They like to meet new people. They are not scared of meeting people. उन्हें मजा आता है लोगों से बात करना, उनके बारे में पूछना. They can sustain communication. अनजान लोगों के साथ भी they can communicate and initiate it and sustain it. Are very comfortable. The people friendly people. High self-esteem. Low self-esteem वाला पीछे पीछे रहेगा, पार्टी में पीछे, ट्रेन में पीछे, कोने में बैठेगा, कोने की सीट देखेगा. लेकिन people with high self-esteem, they enjoy the company of others. है ना, they are comfortable with even strangers. Strangers start feeling very comfortable with them because they are so comfortable that they have the capability to make others comfortable. Very, very powerful quality, है ना, and it's a leadership requirement. They do not worry much about people's opinion. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, they don't bother. As long as they know what I'm doing is right, they don't bother. They are very, very focused and they can still act on their actions जो भी वो करना चाहते हैं, rather than getting caught up in अरे वो अंकल क्या बोलेंगे, आंटी क्या बोलेंगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे. They don't care. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करें. No, they are convinced of what they are doing. They have their own logic behind it and they do it. So that's another quality of. They have courage to express themselves. This already पहले बोल दिया. अगर मुझे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, I have the power to say कि आप गलत बोल रहे हो, है ना. People with low self-esteem, वो अच्छा नहीं सर आप ठीक ही बोल रहे हो सर, कोई बात नहीं सर, ये दिन नहीं है रात है. But people who have that high self-esteem, they also have the internal confidence to say कि सर आप ये जो बोल रहे हो इसमें ये एक फ्लॉ है, we need to fix it. कमज़ोर आदमी नहीं बोल पाएगा. They learn from each experience. लाइफ के हर अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के से कुछ ना कुछ वो सीखते हैं और अपने फ्यूचर डिसीजंस में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. लर्निंग फ्रॉम पास्ट. दे हैव ट्रेमेंडस कैपेबिलिटी because they don't have problem in accepting their mistake, and that's why they are willing to correct it also. But when I don't accept only, फिर मैं correction कैसे करूँगा, है ना. Now इसी तरह से low self esteem के भी कुछ issues है. अगर if somebody is suffering from low self esteem, that also causes problems. So let's see what is the impact of low self esteem. For example, if I am suffering from low self esteem, now low self esteem leads to a feeling. It's a feeling, है ना, feeling of incompetence कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो काबिल नहीं हूँ, मुझसे तो ये नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे लिए, मैथ्स तो मुझसे होगा ही नहीं, इंग्लिश तो मुझसे होगा नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं. दे फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ. वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तो वो क्या करते, दूसरों के ऊपर डाल देते कि आप बोलो सर मैं क्या करूं. तो क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है. बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे फील दे आर इनकॉम्पिटेंट. सो इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है. कुछ भी इनको बोल दो वो मान लेंगे, क्योंकि इनका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है. साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन मतलब बिकॉज द पर्सन डज नॉट वैल्यू हिमसेल्फ, ही इज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, बट ही वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग. तो इनको गोली खिलाना बहुत आसान है, बेवकूफ़ बनाना. कुछ भी मीठा मीठा बोल दो, ये कान के कच्चे होते, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग वर्थ देयर ओन वर्थ. सो एनीबडी हु स्पीक्स मीठा, they cannot differentiate between right and wrong because they are suffering from low self-esteem. किसी ने भी इनको मीठा बोल दिया, वो they will get attracted because their ability to differentiate is already affected because of poor self-esteem. उन्होंने पीछे देखा, it affects your decision making. उनको सही दिखेगा, सही समझ में आएगा, लेकिन जब चॉइस लेना होगा वो ऐसा लेंगे जो उनको आसान लगेगा, बिकॉज इसमें करने के लिए उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. सो दे कैन सी द ट्रूथ, दे कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ, बट दे विल नॉट एक्ट ऑन द ट्रूथ. दैट्स ए वेरी वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद लो, बिकॉज उन्हें पता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं. तो क्या करेंगे, वो लुकिंग फॉर शॉर्टकट पे फंस जाएंगे. उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, मीठा सा 4 बात बोल दो वो फंस जाएंगे. आई डोंट नो आपकी मेरी बात समझ में आ रहा नहीं है. सो नेक्स्ट है, यू मे बिलीव दैट अदर्स आर बेटर देन यू. आपके अंदर एक विश्वास कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर है. मैं
उनसे मतलब कंपैरिजन अपने से, मैंने बोला योर कंपटीशन इज विथ योर सेल्फ, यहाँ पे दे विल स्टार्ट कॉम्पिटिंग विथ अदर्स एंड दे विल कंपेयर, दे विल फील अदर्स आर बेटर, वो तो मुझसे अच्छा है, सुंदर है, ये ज़्यादा मैथ्स में तेज है, इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, है ना. यू मे फाइंड एक्सप्रेसिंग योर नीड्स डिफ़िकल्ट, आप अपने बातों को स्पष्टता के साथ नहीं रख पाओगे, देर इज़ वेगनेस इन योर कम्युनिकेशन, दूसरे लोग आपसे परेशान हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड तुम चाहते क्या हो, दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम अपने स्टेटमेंट को इतने बार बदलते क्यों. वन टाइम यू से दिस इज गुड, सेम टाइम यू से दिस इज नॉट गुड, तो व्हाट इज द ट्रुथ, दैट्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैरिटी की कमी. नेक्स्ट इज यू मे फोकस मोर ऑन योर वीकनेस एंड इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग इट यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट. अपनी सोच को इतना सोच के कॉम्प्लिकेट कर दोगे कि राही का पहाड़ बन जाता. ओवर थिंकिंग के ऊपर दिस ऑलरेडी वीडियो ऑन दी AFOSOP यूट्यूब चैनल, रिक्वेस्ट टू वॉच ओवर थिंकिंग. दैट्स वाई, बिकॉज आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसमें उलझ गए. इट डिप्लीट्स योर एनर्जी. सो पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम, you will always find they are depleted in energy, and people with high self esteem, they are always vibrant, energetic, ऊर्जा से भरपूर. So because people with low self esteem, they only focus on their weakness and keep worrying about it, चिंता करते हैं लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं करते. अपने वीकनेस के ऊपर चिंता करना और अपने वीकनेस के ऊपर एक्शन लेने में दोनों में फ़र्क होता है. सो लो सेल्फ एस्टीम वाले ये नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज यू मे फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस फियर, सेल्फ डाउट एंड वरी, है ना. एक अनजान सा डर, सम आर रियल, सम आर परसीव्ड. डर मतलब कुछ वास्तव में है और कुछ आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है. पता नहीं मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, पता नहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल तो नहीं पूछ लेंगे, घूमता रहता उल्टा. दे डोंट एक्ट. सेल्फ डाउट, उन्हें खुद के ऊपर शक होता है, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. सेल्फ डाउट के बजाय सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मुश्किल है लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ, नामुमकिन नहीं है. एंड वरी, चिंता करते हैं, चिंता चिता समान. जितना आप चिंता करोगे उतना आपका प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो जाएगा. चिंता करने की जगह अगर चिंतन करो कि इसको कैसे ठीक करना है, देन इट विल बी बेटर. सो चिंता चिता समान. You may have a negative outlook towards life. In general, लाइफ में निराशावादी, है ना. लोग तो ऐसे ही है, समाज ऐसा ही है, देश ऐसा है, मोदी जी ऐसा है, पार्टी ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसा है, सब कुछ ही निराशा. मतलब हर चीज़ में नुक्स देखने की एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा. सो एंड यू विल फील लैक ऑफ कंट्रोल. जीवन जो है घिस के चल रहा है. पूछो कैसे चल रहा है, बस कट रहा है. क्यों कट रहा है? बिकॉज दैट कंट्रोल इज मिसिंग, है ना. देर इज अ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, जिसके कारण एक वर्थलेसनेस का फीलिंग, लाइफ बेकार, जीवन व्यर्थ है, बेकार है, कुछ हो नहीं रहा. क्यों? निराशा में फंस गए हो, है ना. नेक्स्ट इज यू मे हैव एन इंटेंस फियर ऑफ फेलियर. हमेशा डर लगा रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, रिश्ते टूट जाएंगे, जॉब चला जाएगा, फेल हो जाऊंगा, रिजेक्ट हो जाऊंगा, पास नहीं होऊंगा, अंग्रेजी नहीं आता, फेल हो जाऊंगा. ये फेल का घबराहट इतना ज़्यादा होता है कि ग्रिप कर लेता है. जैसे इस फोटो में पूरा फियर ने इसको ग्रिप कर लिया है. और उस चक्कर में क्या कहता है, यू कैन नॉट टेक करेक्ट एक्शंस. All your actions only will reinforce your low self-esteem. You cannot take appropriate decisions because आपका decisions is getting affected by your internal thinking process, which is originating from low self-esteem. This has to be fixed, and the best thing is this can be fixed provided you know what needs to be done. Otherwise अंधेरे में तीर मारते चले जाओगे. And आप इसे फिक्स करो ना फिक्स करो, आपसे जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको दिखता है. एंड देयर इज नो पॉइंट पुटिंग अ मास्क, है ना. सो दे हैव इंटेंस फियर ऑफ फेलियर, परसीव्ड एंड रियल. चूहा भी हाथी से बड़ा हो जाता है. उनके ये छोटे छोटे चैलेंजेस जो है उनके लिए बहुत बड़ा बन जाता है. दे कैन नॉट एक्सेप्ट ट्रुथ. वो एक फैंटेसी में रहते हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल. You may have trouble accepting positive feedback. So people with low self-esteem का एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको अगर किसी ने genuinely बोला वेरी गुड जॉब डन, बहुत बढ़िया किया, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये सही कमेंट है या ऐसे ही मेरा काट रहे हैं. मतलब they cannot take positive
कमेंट्स ऑन देमसेल्फ। पॉजिटिव मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या पॉजिटिव कमेंट, है ना, कि आपने बहुत अच्छा लेटर ड्राफ्ट किया, नो, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, नहीं मैं तो कहाँ बना सकती हूँ, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, नहीं मैं कहाँ से लग रहा हूँ। दे कैन नॉट एक्सेप्ट पॉजिटिव फीडबैक। सो चेक करना, यू मे पुट अदर पीपल्स नीड बिफोर योर ओन। क्योंकि ये लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करते हैं तो ये क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में भी रहते हैं। इसका मतलब क्या है, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट तो छोड़ दो, सेल्फिश इंटरेस्ट तो फिर गलत हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं देखते। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना मतलब, अरे व्हेन आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ यू। सो ये लोग क्यों, बिकॉज यू सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे रख के दूसरों के लिए करते रहते हो और दूसरे आपको एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, एंड देन यू बिकम ए फुटमैट। क्योंकि बिकॉज यू डोंट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू पुट एवरीथिंग फॉर अदर्स बिकॉज यू सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, और आपको इस उम्मीद से करते हो कि ये सब करने से अगला बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा, बिकॉज आप भूखे हो, आप गरीब हो, आप भिखारी हो। एक रेफरेंस देता हूँ, अनीता मूरझानी, एक नाम है अनीता मूरझानी, इनको नेट पे मारना। इनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडी। ये इंडियन लेडी है जो कि हांगकांग में सेटल्ड है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो दिस लेडी वॉज लाइक दिस, सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, पीपल प्लीजिंग, दूसरों को खुश करना, पति को खुश, बच्चे को खुश, रिश्तेदार को खुश कर करके चटाई बन गई। नो बडी वैल्यूज हर एंड शी लॉस्ट दैट कंप्लीट थिंग, एंड देन शी हैड सम whatever experience, near death experience, और उसके बाद में 4-5 दिन में एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। टुडे शी इज ए मोटिवेशनल स्पीकर, अनीता मूरझानी, जरा देखना। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, यू मे हैव ट्रबल सेइंग नो एंड सेटिंग बाउंड्रीज। आप नो नहीं बोल सकते और आप दायरों को नहीं बना सकते, दायरे मतलब रिश्तों में बाउंड्री नहीं बना सकते, ना आप बाउंड्री को एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट टेक करेक्ट डिसीजंस बिकॉज देयर आर बाउंड्रीज। ना आप बाउंड्री दूसरों के लिए सेट कर पाओगे, ना खुद के लिए सेट कर पाओगे, और बाउंड्री जब नहीं होगा, ऑल रिलेशनशिप कैन फंक्शन बेटर व्हेन देयर आर क्लियर कट बाउंड्रीज। आप जब हदें पार कर जाते हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, वॉट एवर बी द रिश्ता। सो पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम they have trouble saying no, and they cannot set boundaries, they cannot follow it, and they cannot build it. Parenting maybe it affects because they cannot set boundaries, so in a later stage it affects them. Next is people with low self esteem, they suffer from self confidence. Even if they achieve high ranks, वो अंदर से खोखलापन रहता है। इट इज़ लाइक आपको पोजीशन तो मिल गया, लेकिन आपको पता है कि आप उस पोजीशन के काबिल नहीं हो, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन दैट इज डिमांडेड फ्रॉम दैट पोजीशन। पोजीशन मिल गया, आपको रेस्पेक्ट पोजीशन का मिलेगा, लेकिन वास्तव में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल नो यू आर इनकेपेबल। Position, leadership is not position, it is action. Leadership is not position, it is action. So मुझे बताना है इससे क्या समझ में आया। So people with low self-esteem, they constantly struggle from low self-confidence. And उसके कारण क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी, they always undervalue और they create problem for others because that अंदर से चुभता है, अंदर से कीड़ा काटता है कि यार मैं तो सक्षम नहीं हूँ, that incapacity, incompetence, उसको ब्रिज करने की बजाय वो उसमें दबते रहते, दे डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी। दे हैव अनविलिंगनेस टू वर्क अपॉन देयर वीकनेस, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ चिंता करते, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो एक्शन लेना वो नहीं लेते, बिकॉज दैट डिमांड्स यू टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। वो चिंता करते हैं, उसको मुखौटा पहन लेंगे, उसको करेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम, बहुत एविडेंटली दिखता है। दे सफर फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी लीडिंग टू सोशल विड्रॉल। सोशल एंग्जाइटी मतलब 4 लोग खड़े हो, वहाँ जाने से घबराते हैं, तो क्या करते हैं, वो कमरे में घुसे रहते हैं, सोशल इंट्रैक्शन कम, पड़ोस में कौन है, दोस्त कौन है, वो आ गया, ये आ गया, पीपल को अवॉइड करो। दे विल ट्राई एंड लुक फॉर पीपल who are below them or whom they can control. The people with low self-esteem, they cannot speak and engage in a healthy relationship with
people of same status or status above them. They will look for people who are below them, क्योंकि उनके साथ उनको सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है बिकॉज वो उनसे परसीव्ड लेवल पे नीचे है. आपको समझ में आ रहा? सो पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम दैट सफर फ्रॉम सोशल एंजाइटी एंड social withdrawal tendencies. Next is they always doubt themselves. They cannot trust themselves. Neither they can trust others, and this creates solid conflicts in relationship. हमेशा ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर सवाल. तो यू डोंट लव मी, यू डोंट यू एक्ट लाइक दिस, यू एक्ट. छोटी छोटी बातों को बड़ा करके अगले को दबाने की टेंडेंसी, बिकॉज दे डोंट फंडामेंटली ट्रस्ट देमसेल्फ. तो हर जगह उनको डिस्ट्रस्ट दिखता है ना. इट कैन हैव पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो. आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होंगे जहाँ पे आपको डिस्ट्रस्ट हुआ होगा, लेकिन वो आपके अंदर घर कर गया, आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, एंड दैट क्रिएट्स दिस प्रॉब्लम. दे हैव लो एक्सपेक्टेशन एंड गिविंग अप टेंडेंसी. मतलब उनका अपने आप से ना एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि वो अपने आप को काबिल ही नहीं समझते, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा. दूसरा, फर्स्ट फेलियर में दे विल गिव अप. दे विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशन. प्रॉब्लम को हैंडल करने की जगह उनको प्रॉब्लम से भागने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. बिगर द प्रॉब्लम, बिगर द फ्लाइट. फाइट एंड फ्लाइट. दे कैन नॉट फाइट, दे फ्लाइट में भाग जाएंगे. डिफेंस मैकेनिज्म, फ्लाइट, छोड़ के भाग जाएंगे लड़ाई का, युद्ध का मैदान. They cannot fight because they're suffering from deep insecurity, low self-esteem. So, difficulty in accepting mistakes. People with low self-esteem, they have a mask, and उस mask के कारण वो अपनी गलती मानेंगे नहीं. They will blame others. तुम्हारे कारण. Everybody in the world has to change, but they will not change. That's the problem with people with low self-esteem. Self को समझते नहीं हैं, and self को सुधारते नहीं हैं, and they want others to change, keeping themselves absolutely constant. This affects their relationship in all walks of life, professional, personal, social, friends, or whatever. So they have difficulty in accepting their mistake, and since they don't accept, there's no question of correction. उनका ego बड़ा आ जाता है. अगर मैंने accept कर लिया तो मेरा तो position ही down हो गया. That's a big problem. Because they don't accept, they find a way, tendency to blame others and circumstances. मैंने तो तैयारी किया था, उनकी गलती है, उन्होंने फालतू के सवाल पूछ लिए, सिलेबस से बाहर था, अंग्रेजी में पूछा यार, हिंदी में पूछना चाहिए था, जो मुझे आता था वो तो पूछा ही नहीं, है ना. सो हालात को, मेरे पापा गरीब, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता. They will find ways to justify and rationalize their defense mechanism. People with low self-esteem, they are very rigid in their thought pattern. उनके विचारों में लचीलापन नहीं होता, वो inflexible होते हैं. उनके विचारों को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल, because they are very very inflexible. विचारों में अकड़ूपन. जैसे सीमेंट के बैग में अगर पानी पड़ जाए और सूख जाए, अब वो सीमेंट का बैग किसी काम का नहीं है, तो उसी तरह से उनके विचारों में भी एक रिजिडिटी आ जाता है, इनफ्लेक्सिबल. है ना. मुझे बड़ी खुशी है आज भी, है ना, आई एम ऑलमोस्ट 55 हो गया हूँ, आई एम स्टिल वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज ऑफ दैट आई सी इन माई सेल्फ, कि मेरे अंदर वो ढलने की क्षमता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ, दैट्स एन एटीट्यूड दैट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ. वेरी फ्लेक्सिबल. बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, उधर कर दो, इधर कर दो, फेलियर के साथ, और रिलेशनशिप में वेर आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. बट जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दे हैव प्रॉब्लम इन डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट्स, दे हैव प्रॉब्लम इन डीलिंग विथ रिलेशनशिप. दे आर अनअवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स. दे आर वेरी वेरी ब्लाइंड, है ना. जोहारी विंडो करके एक वीडियो है, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम हैव ह्यूज Q2, that is blind area, and because they have a huge Q2, they don't understand their own emotions, they don't understand their own faulty thought pattern, and because they don't understand themselves, it's very difficult for them to understand others. How can you understand others when you're not able to understand yourself? And they create a mess for themselves and for others because of this incapability. So they are extremely
incapable of understanding their feeling, and because they don't understand their feeling, it's very difficult for them to understand others. Their relationship is constantly in war. They are constantly involved in their relationship because they don't understand themselves. So when you understand yourself, it becomes easy to understand others. Avoid slightest risk, remains in comfort zone. छोटा सा भी रिस्क हो भाग जाएंगे. कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते. दे वेरी रिजिड. ऐसे में ग्रोथ नहीं होगा. ऐसे लोग ग्रो नहीं कर पाते. दे आर स्टैग्नेंट. मच्छर पैदा हो जाएंगे. सो छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता. छोटा सा एक कम्युनिकेशन स्किल का वीकनेस है, उसको सुधारने के लिए क्लास के सामने आने के लिए घबराहट होगी. क्यों? क्लास के सामने आएंगे, लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से ग्रो होगा. पता है मेरे अंदर वीकनेस है, लेकिन एक्शन नहीं लेगा, है ना. डिफेंसिव, नॉन असर्टिव बिहेवियर. दे वेरी डिफेंसिव, दे एग्रेसिव बट नॉट असर्टिव. एग्रेशन इज गुस्सा, कंट्रोलिंग. असर्टिव इज क्लैरिटी. असर्टिव सॉफ्ट हो बट असर्टिव नो. दे विल बी डिफेंसिव. अपनी गलती को डिफेंड करके नुकसान हो जाएगा लेकिन बदलेंगे नहीं. रिश्ता टूट जाएगा लेकिन बदलेंगे नहीं. रिश्ते तोड़ देंगे लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम. दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर मास इवन इफ द रिलेशनशिप गोज ऑन अ टैंजेंट. तो बहुत डेंजरस है वो. दे ब्रेक एग्रीमेंट. वादे करेंगे, फट से तोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम उन्हें वो पूरा करने में मदद ही नहीं करेगा. उसको मतलब it is very difficult for them to maintain the words that they give. They will again break it. They'll go through the same experience till they fix it. The best thing is these can be fixed, and trustworthiness can be built provided you fix it. Without fixing it, this will reoccur. They does not voice their opinion. वो अपने वॉइस को दबा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, दबा के रखेंगे. अंदर कुड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे और एक दिन वॉल्केनो की तरफ फट जाएंगे. That's the nature of people with low self-esteem. So it is better that you understand these tendencies within you and fix it, and so that your communication becomes more meaningful. People can trust your communication. People can engage with you in a constructive manner. Otherwise, the other person is always constantly in fear कि ये तो फिर हो जाएगा. So people with low self-esteem cannot be trusted very easily because these tendencies reappear. Makes decision reinforcing low self-esteem. People with low self-esteem जो है, they take such decision which again reinforces their decision. मतलब वो एक negative loop है, वो loop में घूमते रहेंगे. This can be broken provided you know what's the flaw. Provided you know what's the flaw within you. आप कंस्ट्रक्टिवली किसी चीज़ में एंगेज नहीं हो सकते बिकॉज आपको ये लूप तोड़ना पड़ेगा. ये लूप नहीं टूटेगा, आप दोबारा एंगेज हो गए, मोमेंटली हो जाएगा, फिर ये वापस चलाएगा. दिस इज अ डीप प्रॉब्लम. सो गुड थिंग इज सेल्फ एस्टीम कैन बी बूस्टेड. इसे ठीक किया जा सकता है, एंड दिस इज मच मोर ईजियर देन डेवलपिंग योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स. है ना, योर तर्क शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग से ज़्यादा ईजी है इमोशनल थिंग्स को डील करना, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट टू फिक्स एंड वेयर टू फिक्स. एंड आपको इस तरह से ज़िंदगी मर मर के काटने की ज़रूरत नहीं है. आप यू कैन एक्चुअली फ्लाई, यू कैन एक्चुअली बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू. है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर नेगेटिव थाट्स. Awareness, self-awareness is the first step. In fact, personality and leadership development का first step is to develop yourself. अपने आप को समझो. मेरे strength क्या है, मेरे weakness क्या है, मेरे belief system क्या है, मेरे thoughts क्या है, मेरे value system क्या है, मेरे needs क्या है. How do I perceive myself? Only then you can understand how others perceive you. है ना? So become more aware of your negative thoughts. How to be aware? Self-awareness. है ना? We will talk about it. There's a module called MIS of self, Management Information System of the Self. That is where we help you do this. है ना? Challenge negative thinking pattern. मुझे पता है मेरे अंदर ये उल्टी सोच चल रही है. मुंह से तो नहीं बोल रहा, लेकिन स्वयं को तो मुझे पता है. I need to understand and recognize it and stop it through auto suggestion, tools. These are all psychological tools, some are spiritual tools, very powerful tools, provided you know how to engage with that.
चैलेंज का मतलब क्या है? उस पैटर्न को तोड़ना है। देखो वो बाहर तो दिखेगा नहीं, तो सोच में चल रहा है, बट उसको रिकॉग्नाइज करके तोड़ना है। नहीं तोड़ोगे तो वो लूप में फंस के इतना जबरदस्त नुकसान करेगा आपको लाइफ में। इट कैन बी फिक्स्ड। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. व्हाट डज इट मीन? यू कैन नॉट ब्रिंग constructive communication in the world outside unless you know how to create it in the world inside. Even in the worst of situation, you should know how to look at the constructive part of the situation. So what needs to be accepted, what needs to be focused and corrected. That ability to differentiate, this requires certain degree of observation. Self transformation through self observation. We do that module in the self management leadership course. Unless you do that, you will not know what's the inner process. ये बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ने सिखाना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ही नहीं पता तो कहाँ से सिखाएंगे? स्कूल में भी नहीं सिखा रहे। कब होगा? कब होगा? सिर्फ मार्क्स लाने से तो नहीं चलेगा ना। 98% आपका पैटर्न तो गड़बड़ हो रहा है। Next is practice self-compassion. You need to forgive and forget yourself sometime. Many times you would have made mistake. उस loop में फंस जाते हैं. And many times you have to forgive and forget others even when what they have done is not worthy of forgiving. उन्होंने जो किया है उससे माफ़ करने योग्य नहीं है, उसके बावजूद उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने जो किया वो सही है, बट इसलिए क्योंकि जब मैं उन्हें माफ़ करता हूँ मैं अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली फ्री करता हूँ। ये बाहर उतार दिया। द प्रॉब्लम इज व्हाट दे हैव डन इज रॉन्ग। आई हैव लर्न माई लेसन बट आई विल नॉट कैरी इट। सो जा, मैंने तुझे माफ़ किया डज नॉट मीन व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट टू मी. It simply means that I unburden myself. You have to correct it. So practice self-compassion. That's another way. So self-esteem अगर आपने इनको fix नहीं किया तो gradually this can lead to mental health disorders. That's a problem. That's a danger. And आपको पता है Corona has already only multiplied it. People with mental disorders. So this needs to be fixed. This needs to be corrected. एंड अगर ये नहीं करोगे, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, फेलियर एंग्जाइटी, एंड इफ यू डोंट करेक्ट इट विल गो टू क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड फाइनली डिप्रेशन ऑब्लिक एग्रेशन में चले जाओगे एंड इट कैन लीड टू एक्सट्रीम डिसीजंस इन लाइफ. सो ये दिस इज टू बी करेक्टेड. नाउ पीपल हु आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि if you are suffering from this, is it okay to go to SSB by correcting TAT, WAT, SRT? Should you get recommended? Now this part is for the SSB candidates. First part was for across. So क्या SSB में 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT, GD, GP, 2 PGT, 2 HGT, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड CIQ उसको याद कर लो, SD को ब्रांडेड SD ले लो, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो. क्या ये सब करने से और रट्टा मार के किसी का कहानियों को लेके जाने से इज़ दिस द मेथड टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम्स? मुझे जवाब देना, इसका फीडबैक देना, बिकॉज मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है. SSB में आपको जा रहे हो तो ये चतुर की तरह ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज दोस पीपल कैन सी थ्रू यू. इट इज़ पर्सनालिटी असेसमेंट इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क. They want to understand your value system, belief system, attitude, need, motive. जब तक आप इसे फिक्स नहीं करोगे इट कैन नॉट बी करेक्टेड. सो मुझे इसका जवाब देना, क्या 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू राइट अमेजिंग TAT स्टोरी, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, इज दिस द करेक्ट मेथड ऑफ preparing for the SSB, those who are going for SSB? SSB is a personality based selection and low self-esteem is a personality problem. And low self-esteem is not only a personality problem, there are multiple consequences of that. Low self-esteem will block your confidence को नीचे ले आएगा, initiative को ले आएगा, your ability to function at a leadership position नीचे ले आएगा. It will have multiple impact. Fear of failure आ जाएगा. This needs to be fixed. सो SSB की तैयारी दो लेवल पे, पहला लेवल पे लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरे लेवल पे SSB के टेस्टिंग टूल, दैट इज कर्मा वाचा मानसा. आपने पहले को टोटली इग्नोर कर दिया है
और दूसरे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. मुझे बताना मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. एट द AFOSOP वी हैव गॉट 2 प्रोग्राम. फर्स्ट प्रोग्राम जो लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का, which is open for everybody, because low self-esteem is not only SSB problem, it's a life problem. So everybody who feels this is, whatever I've made this video is making sense, you're most welcome to contact me to go through the leadership and personality development program, which is based on the concept of self-management leadership. और इसके लिए आपको समझना है तो एक वीडियो देखना, SML Mind Matters. It's a 2-hour video. So much I've spoken about what we do here. So I'll request you watch that. And those of you going for SSB, only that category, you can also come for the SSB training, AFOSOP, जो कि Armed Forces Officer Selection Orientation. Both these programs have got DAPR Director का appreciation. So that letter आपने देखा ही होगा. So जो लोग इसमें interested है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स का जो ऑनलाइन बैच है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का बेस्ड लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनीबडी कैन अटेंड फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. मम्मी पापा, मैरिड कपल, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, एनीवन कैन अटेंड. It's not a SSB program, it is a life oriented program. So 2 weeks of ये जो leadership and personality development program है, fresh batch starts every Monday. This is only online. The timings are in the morning from 6:30 to 8:30. Those who wish to know the details about it, 8275577650. This is the number on which you do send me a WhatsApp message and I'll get back to you. The next first batch abhi here on is starting on 10th of January, which is Monday, online. उसी तरह से जो लोग को SSB के लिए जा रहे हो, 2 weeks का प्रोग्राम ऑफलाइन इज अवेलेबल एट पुणे एंड AFOSOP के नाम से, विच इज डायरेक्टर DAPR अप्रिशिएटेड वाला प्रोग्राम है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. सो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विल एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर पीपल हु आर गोइंग फॉर SSB or any walk of life, and this is also starting on each Monday, the next being 10th of January. To register, 8275577650 is the number on which you have to contact. इसके अलावा courses.ganeshbabu.in, इसके ऊपर whole lot of information I'm building up, so I'll request you to please go there once in a while or subscribe this channel, YouTube channel, so that you get instant notification bell को भी दबा दो. If you want any clarification, 9090099035 or 8275577650. These are the 2 numbers you can call / WhatsApp and I'll get back to you with more details. मुझे ज़रूर इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स डाल के बताना कि is it relevant to you, समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आया, and how is it related to you and your life. And in case you find it is making sense, kindly share it with as many friends as possible so that they also benefit. And do subscribe this AFOSOP YouTube channel so that you get instant notification of these videos. I hope these videos are helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.